ایک نواب کی پر اسرار تلسماتی دنیا کی آپ بیتی، محبت اور نفرت کے تصادم، نیکی اور بدی کی کشمکش کی داستان۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار تلسمی دنیا کی آپ بیتی، ایپیسوڈ نمبر 15۔ لیکن گلشن ماموزاد نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور ذرا دلیر ہو کر کہا، تم کون ہوتی ہو شادی سے انکار کرنے والی؟ یہ تو ہمارے بزرگوں کا فیصلہ ہے جو ہم دونوں کو ماننا پڑے گا۔ اپنے امی اور اپنے ابو جی سے کہو کہ وہ میرے باپ کو جواب دے دیں۔ میں تمہیں جواب دے رہی ہوں، گلشن آرا نے کہا، اسی کو کافی سمجھو۔ یہ بھی سن لو کہ تمہارے ساتھ میری شادی ہو بھی گئی تو میں تمہیں قبول نہیں کروں گی، نہ دل سے تمہیں چاہوں گی، نہ اپنے جسم کو ہاتھ لگانے دوں گی۔ ماموزاد منت سماجت پر اتر آیا، پھر اس کے آنسو نکل پڑے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے گلشن آرا سے پوچھا۔ کیا تمہارے امی ابو مجھے پسند نہیں کرتے؟ میں گلشن آرا نے اونچی اور تندیہ آواز میں کہا، میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ تو کیا اتنے دن مجھے دھوکہ دیتی رہی ہو؟ جو جی میں آئے سمجھ لو، گلشن آرا نے کہا، اور اب چلے جاؤ۔ یہ بھی سن لو، شادی رکوانا تمہارا کام ہے، شادی ہو گئی تو میں تمہیں دھتکار دوں گی۔ وہ چلا گیا اور اس نے دوسرے دن 3-4 صفحوں پر اپنے دل کا حال لکھا، ان کاغذوں کو طے کیا۔ کسی بہانے گلشن آرا کے گھر آیا اور یہ کاغذ اس کے پاس پھینک کر چلا گیا۔ گلشن آرا نے یہ طویل تحریر پڑھی اور اس کے ماموزاد نے محبت کی شدت کا اظہار کیا اور محبت کی بھیک مانگی تھی۔ آخر میں اس نے لکھا تھا، گلشن آرا، میں محبت کا جواب تم نے محبت سے نہ دیا تو وہ خودکشی کر لے گا۔ گلشن آرا نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر صرف یہ الفاظ لکھے، خودکشی کر لو گے تو یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، اور وہ کاغذ کا یہ ٹکڑا اپنے ماموزاد کے ہاتھ میں دے آئی۔ اسی شام سورج غروب ہونے کو تھا کہ گلی سے کسی کی آواز آئی، اکرام گاڑی کے نیچے آ کر کٹ گیا ہے۔ پھر یہ آواز سارے محلے میں پھیل گئی، لوگ دوڑتے جا رہے تھے، وہ اکرام کی کٹی ہوئی لاش دیکھنے جا رہے تھے۔ بہت بڑا حادثہ تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اکرام کٹ گیا تھا۔ اس کے مرنے کا مجھے ذرا بھی افسوس نہ ہوا، گلشن آرا مجھے سنا رہی تھی۔ البتہ ایک پریشانی نے مجھے گھیر لیا۔ خیال آیا کہ اکرام نے گھر میں یا اپنی جیب میں رکا ضرور چھوڑا ہوگا کہ وہ مجھ سے مایوس ہو کر خودکشی کر رہا ہے۔ میں اپنی امی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اس کی ماں بے ہوش پڑی تھی، محلے کی عورتوں کا ہجوم تھا۔ میں اتنی پتھر دل ہو گئی تھی کہ مرنے والے کی ماں کی بے ہوشی نے بھی مجھ پر اثر نہ کیا۔ مجھے اطمینان سا تھا کہ میرے راستے سے رکاوٹ ہٹ گئی۔ میں ڈرتی تھی کہ حمید اللہ کے پیچھے گھر سے بھاگ جانے سے پہلے میری شادی ہو جائے گی۔ گلشن آرا بولتے بولتے چپ ہو گئی، اس کے آنسو بہہ نکلے اور وہ سامنے دیوار پر دیکھ رہی تھی، جہاں اب ایک کی بجائے 2 گدھ بیٹھے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے ماں کے اکلوتے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، گلشن آرا نے سسکی سی لے کر کہا۔ اسے ریلوے لائن تک میں نے پہنچایا تھا۔ مجھے سزائے موت 7-8 سال بعد ملی ہے۔ میں نے اکرام کو ایسی اذیت میں ڈالا تھا جس میں آج خود پڑی ہوں۔ اکرام کو تو لوگوں نے جنازہ پڑھا تھا، ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرا تو جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ میرے غم میں آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور میری لاش کو اب پچھتاؤ نہیں گلشن، میں نے اسے کہا، باتیں کرتی رہو ورنہ تڑپ تڑپ کر مرو گی۔ آگے سناؤ کیا ہوا تھا؟ زیادہ تر لوگ یہی کہتے تھے کہ اکرام نے خودکشی کی ہے، گلشن آرا نے کہا، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ریل کی پٹری سے گزرتا مارا گیا ہے۔ صرف مجھے معلوم تھا کہ اکرام نے خودکشی کی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اکرام نے اپنے پیچھے کوئی تحریر نہیں چھوڑی تھی۔ پھر وہ چپ ہو گئی اور خلا میں ایسے دیکھنے لگی جیسے اسے کوئی چیز نظر آ رہی ہو۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ الٹی طرف سے اپنے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ وہ پیچھے کو سرکنے لگی، پھر میرے پیچھے ہو گئی۔ وہ تو خوف سے مر رہی تھی۔ وہ دیکھو سکندر، اس نے بازو ایک طرف بڑھا کر کہا، وہ آ رہی ہے، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ ذرا حوصلہ کرو گلشن، میں نے کہا اور اسے سنبھالنے کے لیے پیچھے کو مڑا۔
तुम देख नहीं रहे? उसने कहा। वो देखो, अकराम की माँ आ रही है। मैंने उधर देखा, कुछ भी नहीं था वहां। अकराम की माँ किसी तौर पर नहीं आ सकती थी। गुलशन आरा का दिमाग खराब हो गया था। उसे रोको सिकंदर, गुलशन आरा ने कहा। उसके नाखून देखो, उसके दांत देखो, ये कोई दरिंदा है, औरत नहीं। वो वहमा देख रही थी। वो अपने आप को अकराम की माँ का मुजरम समझ रही थी। उसके गुनाह उसके सामने नाच रहे थे। उसे अकराम की माँ उसके गुनाहों की सूरत में नजर आ रही थी। ये उसकी ज़मीर का नंगा नाच था। यहाँ कुछ भी नहीं है गुलशन, मैंने कहा। वो देखो, उसने कहा। वो रुक गई है और मुझे घूर रही है। वो अपने गुनाहों की सदा भुगत रही थी। दीवार पर और दरख्तों पर 4-5 और गिद्ध आ बैठे थे। मैं बड़ी जानलेवा कोशिश से गुलशन आरा को नॉर्मल हालत पर लाया, मगर मैं उसके रोने पर काबू ना पा सका। उसमें जुरैत आ ही नहीं सकती थी। गुनाह जुरैत को खा जाता है। अकराम की खुदकुशी के 20-25 रोज बाद गुलशन आरा रात को, जब उसके घर वाले गहरी नींद सोए हुए थे, घर से निकली। गली की नुक्कड़ पर नवाबजादा हमीदुल्ला का आदमी खड़ा था। वो उसे उस जमाने के सफेद बुरके में छुपाकर साथ ले गया। वो बुरका अपने साथ लाया था। ये आदमी दिन को भिखारी फकीर के भेष में आया था, गुलशन आरा ने मुझे बताया। हमीदुल्ला दूसरी मुलाकात में मुझे बता गया था कि किसी रोज एक फकीर तुम्हारे दरवाजे पर सदा लगाएगा। उसे तुम कुछ देने के बहाने बाहर आ जाना, वो तुम्हें बता देगा कि क्या करना है। मैंने ये सारा दिन उस फकीर के इंतजार में गुजारा और एक रोज वो आ गया। मैं दरवाजे तक गई और उसने मुझे पैगाम दे दिया। तुम्हें घर छोड़ने का अफसोस तो हुआ होगा, मैंने कहा। जरा सा भी नहीं, उसने जवाब दिया। मुझ पर नशा सा तारी था। गुलशन आरा रात की गाड़ी से रवाना हुई और सुबह नवाब के महल में पहुंच गई। हमीदुल्ला उसे एक शाहाना कमरे में रखा और उसे कहा कि वह नवाब साहब से शादी की इजाज़त आज ही ले लेगा। गुलशन आरा के आगे जब खाना रखा गया तो वो हैरान रह गई। उसके लिए बाद खाने अजीबो गरीब थे। उसे बड़ी खूबसूरत नौकरानियों ने नहलाया और रेशमी लिबास पहनाया। अतर जो उसे लगाया गया, उससे तो वह मदहोश होने लगी। हमीदुल्ला उसके साथ रहा और शाम से कुछ पहले उसे ये कहकर चला गया कि वह अपने बाप नवाब साहब से शादी की इजाज़त और इंतज़ामात की बात करने जा रहा है। गुलशन आरा उसका इंतज़ार करती रही, मगर शाम के बाद उसकी बजाय एक औरत ये पैगाम लेकर आई कि नवाब साहब याद फरमा रहे हैं। गुलशन आरा उसके साथ चली गई। इतने कीमती लिबास में उसकी चाल ही बदल गई थी। उसे नवाब के कमरे में दाखिल कर दिया गया। आ मेरे पास बैठ लड़की, नवाब ने उसे कहा। हमारा बेटा वाकई हीरा लाया है। वो हमारे ज़ौक़ को जानता है। बड़ा बरखुरदार बेटा है। गुलशन आरा उसके पास बैठ गई और नवाब ने उसे अपने एक बाजू के घेरे में लेकर अपने करीम कर लिया। नाम गुलशन आरा, बहुत प्यारा नाम है, नवाब ने कहा। तू हमारे दिल का गुलशन है। हमारे बेटे ने हमें जवान कर दिया है। नवाब साहब, गुलशन आरा ने झिझकते शर्माते पूछा, आपने उन्हें शादी की इजाज़त दे दी है? उन्हें कौन? अपने बेटे को, गुलशन आरा ने कहा। नवाबजादा हमीदुल्ला खान को आपने मेरे साथ शादी करने की, नवाब का कहका बुलंद हुआ। अहमक लड़की, नवाब ने हंसते हुए कहा। तू नवाबों की चीज़ है, नवाबजादों की नहीं। तेरी शादी हमारे साथ होगी। तुझे हम हरम में नहीं, अपने सीने से लगा कर रखेंगे। तो क्या नवाबजादा हमीदुल्ला खान मुझे धोखे से यहाँ लाया है? जैसे भी लाया है, ले आया है, नवाब ने कहा। लेकिन हीरों के कदरदान हम हैं। हम तुझे एक औबाश नवाबजादे की बीवी बनाकर तुझ पर जुल्म नहीं करना चाहते। गुलशन आरा को चक्कर आने लगे, लेकिन जिस चक्कर में वो आ गई थी उससे अब नहीं निकल सकती थी। रात को निकाह ख्वान आ गया और निकाह हो गया। नवाब का खजाना भरा हुआ था, लेकिन उसका जिस्म खोखला हो चुका था। जिस्म का खजाना खाली हो चुका था। नवाबजादा हमीदुल्ला लापता हो गया। गुलशन आरा पिंजरे में पंछी की मानद कुछ दिन तड़पी, फिर उसका दिल लग गया। नवाब ने उसे अपनी चहेती बेगम बना लिया था। वो दिन रात उसे अपने साथ रखता, अपने किसी हुक्म
उसकी जुबान से दिलवाता और उसने गुलशन आरा को सही मायनों में मलका बना दिया था। सैर तफरी के लिए 4 घोड़ों की बग्गी। वो बाहर निकलती तो 2 घोड़सवार मुहाफिज बर्छियों और तलवारों से मसला उसके साथ होते। रास्ते में आने वाले लोग रुक जाते और झुक जाते। मैं तो आसमान पर पहुंच गई थी, गुलशन आरा ने मुझे सुनाया। एक रोज महल के 2 मुलाजिम चोरी करते पकड़े गए। नवाब ने मुझे कहा कि मैं गवाहों के बयान सुनूं और उन्हें सजा दूं। सिकंदर, मैं अच्छे अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि मैं जब बादशाहों जैसी कुर्सी पर बैठी एक एक गवाह की बयान सुनती तो मैंने अपने आप को क्या समझना शुरू कर दिया था। हर गवाह मेरे सामने आता तो वो दोनों हाथ माथे पर रखकर इतना झुक जाता कि उसका माथा फर्श के करीब पहुंच जाता था। फिर मैं आज अफसाने और मनगढ़ंत किस्से लगती हैं। मसलन कि आज के दौर में अजीब सी बात लगती है कि 50 साल का उम्र का आदमी तंदुरुस्त व तवाना था और उसके चेहरे पर सेहत और जवानी की सुर्खी थी। हकीकत यह है कि उस ज़माने में 6 फुट आम कद हुआ करता था और सेहत और तंदुरुस्ती का मेयार यही था जो मैंने बयान किया है। मैं जिस नवाब का किस्सा सुना रहा हूँ ये भी आज के दौर में अल्फ लैला की दास्तान का एक बाब लगता है। सिर्फ वो लोग उसे हकीकत समझते हैं जिन्होंने वो दौर देखा है। ऐसे लोग अभी जिंदा हैं। नवाबों, महाराजों और राजाओं का दौर अगस्त 1947 में ख़त्म हुआ था जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए थे। नवाब और महाराजे अपनी रियासतों में काला कानून चलाते थे। उनकी ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ कानून होता था। उनमें बाद अपनी रियाया से अपने आगे सजदे कराते थे, रिया से बेकार लेते थे और उनमें कश्मीर का डोगरा महाराजा सबसे ज़्यादा जालिम था और उसके जुल्म का निशाना मुसलमान होते थे। हिंदुस्तान में ऐसे नवाब भी होकर गुजरे हैं जिनकी रियासतों में किसी लड़की की शादी होती थी तो वो पहली रात नवाब के साथ गुजारती। ये हुक्म एक रवाज बन गया था और मजबूर और मकहूर रियाया उसे जायज़ समझती थी। ऐसे भी होता कि दुल्हन की बजाय उसकी कीमत आ जाती, यानी वो लड़की नवाब साहब को पसंद आ जाती और हरम में दाखिल कर ली जाती। शायद बाज़ हजरात को यकीन ना आए, पाकिस्तान में ऐसे पीर मौजूद हैं जो साल में 1 मरतबा मरीदों के गांव में दौरे पर जाते हैं और जिस गांव में जाते हैं वहां उन्हें रात को ठहराया जाता और गांव की एक कंवारी लड़की रात के लिए पेश की जाती है। मरीद उसे मायूब नहीं समझते बल्कि पीर को पेश की हुई लड़की को मुकद्दस समझा जाता है। मुझे एहसास है कि मेरी कहानी पढ़ने वालों में, सुनने वालों में अक्सरियत खवातीनों हजरात की है जिन्होंने वो वक़्त नहीं देखा और उस वक़्त के वाक़यात और हालात को नाकाबिले यकीन समझते हैं। मैं उनकी तसल्ली के लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि मेरी आप बीती जल्द ही इस माहौल से निकल आएगी जो आपके लिए अजीब और नाकाबिले यकीन है। फिर मैं आपको वो बातें सुनाऊंगा जो पुरानी होने के बावजूद आपको पुरानी नहीं लगेंगी। जब तक इस ज़मीन पर इंसान मौजूद है वो अपनी फितरत का गुलाम रहेगा और इस किस्म की कहानियाँ जन्म लेती रहेंगी। मैं गुलशन आरा और खान उस्मान अली खान की दर पर्दा दोस्ती की बात सुना रहा था। ऐसा होना ही था। गुलशन आरा जवान लड़की थी, उसने किसी न किसी को दोस्त बनाना ही था। उस्मान अली उसकी ये ज़रूरत पूरी कर दी तो वह नवाब के साथ पहले से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करने लगी। उस वक़्त तक गुलशन आरा खासी होशियार और चालाक हो चुकी थी। उसे जो नौकरानियां दी गई थी वो तजर्बाकार औरतें थीं। उन्होंने गुलशन आरा को कुछ ढंग और कुछ रास्ते बता दिए थे। अगर कुछ कसर रह गई थी तो वो खान उस्मान अली खान ने पूरी कर दी। उस शख्स ने गुलशन आरा को बताया कि नवाबजादा हमीदुल्लाह कहाँ है। हमीदुल्लाह ने नवाब से शादी की इजाज़त मांगी थी। नवाब ने उसे कहा कि वो लड़की को देखकर फैसला करेगा। हमीदुल्लाह गुलशन आरा को नवाब के पास ले जाना चाहता था, लेकिन नवाब की नीयत ठीक नहीं थी। उसने गुलशन आरा को बुलाया तो ये उसे पसंद आ गई। उसने रात ही रात गुलशन आरा से निकाह कर लिया और सुबह हमीदुल्लाह के साथ सौदा। नवाबजादे होते ही औबाश थे,
लेकिन हमीदुल्लाह कुछ और किस्म का औबाश बल्कि बदमाश था। उसके मुतल्लिक ये भी सुना गया था कि नामी गिरामी और बड़े ज़बरदस्त किस्म के 2 डाकुओं के साथ उसके दोस्ताना मरासम थे। उस ज़माने में ऐसे डाकू होते थे जो रेलगाड़ियां तक लूट लेते थे। वो डाका जनी की बहुत बड़ी और बड़ी ही दलेराना वारदातें किया करते थे। हमीदुल्लाह बाप को परेशान करता रहता, खजांची से बेतहाशा पैसे ले जाता और ऐशो इशरत करता। उसका शिकार का शौक भी बहुत महंगा था। वो नवाब की जान शानी की उम्मीद भी लगाए बैठा था, बल्कि अपने आप को वली अहद समझता था। उस्मान अली खान ने गुलशन आरा को बताया कि नवाब ने उसे कहा कि वो 300 एकड़ ज़री ज़मीन ले ले और वहाँ जाकर आबाद हो जाए और वली अहद का ख्याल जहन से निकाल दे और गुलशन आरा को भूल जाए। हमीदुल्लाह ने यह सौदा मंजूर ना किया और बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा हुआ। बाप ने उसे अपने हाथ यूं दिखाए कि उसे पिटवाया और अपने हवालात में बंद कर दिया। 2 दिन तक उसे पानी तक ना दिया। तीसरे दिन उसे पानी का सिर्फ 1 गिलास दिया गया। चौथे रोज उसे बेहोशी की हालत में हवालात से निकाला गया। नवाब ने उसे कहा कि वह सौदा कबूल कर ले, वरना उसकी मौत की किसी को खबर तक नहीं मिलेगी। उसने सौदा कबूल कर लिया और वहां से 90-95 मील दूर ज़री अराजी पर चला गया। उसके मुतल्लिक मुझे पता चलता रहा, वहां वो बहुत बड़ा जागीरदार बन गया था। गुलशन आरा ने मुझे सुनाया। 2-2.5 साल बाद मुझे किसी ने बताया कि हमीदुल्लाह ने अपनी जागीर को एक बड़े मशहूर डाकू का अड्डा बना रखा है और वहाँ और भी बहुत कुछ होता है। तुम समझ सकते हो वहाँ और क्या कुछ होता होगा। 5-5.5 साल गुजर गए और नवाब की नजर करम फिर गई। अब गुलशन आरा को नवाब कभी कभी नजर आता। उसे उसकी खादमाओं ने जहनी तौर पर तैयार कर रखा था कि एक दिन आएगा, नवाब उसे पुरानी जूती की तरह फेंक देगा और जहन से उतार देगा। गुलशन आरा नाम की किसी औरत को कि वो कभी जानता भी था। इस दौरान महल के एक और आदमी के साथ उसने दर पर्दा दोस्ती कर ली, जिसका खान उस्मान अली खान को कभी भी पता ना चल सका और उसके साथ तो उसकी दोस्ती बड़ी पक्की थी। तो मेरे दिमाग पर ऐसे गालिब आए कि मैंने इन दोनों से ताल्लुकात तोड़ लिए। गुलशन आरा ने कहा, हालांकि ताल्लुकात तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। शायद मुझसे ये गलती करवा के खुदा ने मुझे पकड़ने का फैसला कर लिया था। मैं समझती थी कि मेरा हुक्म पहले की तरह चलता है और सब मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि उस्मान अली खान नवाब पर छाया हुआ है और हुक्म नवाब का कम और उसका ज़्यादा चलता है। उसे किसी ने बता दिया कि मैं नाचने वाले एक लड़के को अपने पास बुलाती हूँ। उसने अपने मुखबरों के ज़रिए मुझ पर नज़र रखी और मुझे पकड़ लिया। क्या खुदा मेरा ये गुनाह बख्श देगा? मैंने एक नवाबजादे की खातर अपने मामूजात का दिल तोड़ा, उसे अकार से धत्कारा, उसकी खुदकशी का बाइस बनी। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने कहा। मेरा ख्याल है कि तौबा और बख्शिश का वक़्त गुजर गया है। मैं कम अज़ कम एक इत्मीनान दिल में लिए मर रही हूँ। उसने कहा, मैंने तुम्हें अपने गुनाह से अलूदा नहीं किया। ये तुम्हारे असर का नतीजा था या उसकी कोई भी वजह थी। मैं तुमसे शर्मसार नहीं। अब तुम मुझे ऐसे लगते हो जैसे तुमने मेरी कोख से जन्म लिया हो। सिकंदर, अब हम क्या करें? मौत का इंतज़ार, मैंने कहा। ये तो बड़ी बेरहमी की मौत होगी, उसने कहा। मुझे प्यास लगी है, मुंह सूख रहा है। 3 या 4 दिन और, मैंने कहा। अगर जल्दी मरना चाहती हो तो आओ दौड़ें। प्यास लगेगी, भूख लगेगी, हम दौड़ते रहेंगे और पसीनों से जिस्मों की नमी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मैं फ़ौरन मरना चाहती हूँ, उसने कहा। मैं अज़ियत से तड़प तड़प कर मरने से डरती हूँ। कोई तरीका सोचो। उसने इधर उधर देखा और बोली, वो देखो कितना बड़ा पत्थर है। मैं उल्टी लेट जाऊंगी। पत्थर अपने सर से ऊपर ले जाकर मेरे सर पर फेंक देना, मैं फ़ौरन मर जाऊंगी। नहीं गुलशन, मैंने कहा, मैं कातिल होकर नहीं मरना चाहता। मैं अकेला भी तो रह जाऊंगा। हाँ, उसने कहा। सुना है यहाँ बड़े जहरीले सांप और बिच्छू होते हैं। अगर हम दोनों को सांप डस ले तो हम उस मौत से बच जाएंगे जो हमारी जान बड़ी आहिस्ता आहिस्ता निकालेगी। डरो नहीं गुलशन, मैंने कहा। खुदा को जिस तरह मंजूर हुआ हम उसी तरह मरेंगे। मैं फ़ौरन मरना चाहती हूँ, उसने कहा।
मैं उसे तसल्ली देता रहा, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। गिद्ध सूखे पेड़ों पर और दीवार पर बैठे हमें देखते रहे और हम उन्हें देखते रहे। दिन गुजर गया, फिर सूरज गरूब हो गया। हम थोड़ा सा चले फिरे भी थे। भूख और प्यास अपना असर दिखाने लगी थी। गुलशन आरा लेट गई। शाम तक उसकी ये हालत हो गई थी कि उसके मुंह से बात नहीं निकलती थी। मैं अंधेरे में देख न सका कि वो जाग रही है या सो गई है। मैं उठा और टहलता टहलता उससे दूर चला गया। एक जगह रुककर मैंने आसमान की तरफ देखा और मेरी आह निकल गई। गुजरी हुई जिंदगी के लम्हे मेरी आंखों के सामने उल्टे कदम गुजरने लगे। मुझे माँ याद आई। मैंने लम्हों के काफलों को वहीं रोक लिया। मेरी माँ गुलशन आरा की तरह खूबसूरत थी। ओ खुदाया, मेरे मुंह से निकल गया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? किस गुनाह की मुझे इतनी सख्त सजा दे रहा है? जान वापस लेनी है तो फौरन ले ले। मैं घर से एक गुनाह से भागा था और यहाँ खुद भी वैसे ही एक गुनाह से बचा हूँ और इस औरत को भी गुनाह से बचाया है। क्या ये है तेरी खुदाई? फिर भी तेरी खुदाई को मानता हूँ। मैंने शायद कुछ और भी कहा था। बहुत सारी बातें की थी खुदा के साथ। आधी सदी से ज़्यादा उम्र गुजर गई है। मुंह से निकले हुए कई लफ्ज़ याद नहीं रहे। अलबत्ता ये याद है और बड़ी अच्छी तरह याद है कि खुदा के साथ इतनी सारी बातें करके मुझे सुकून और करार सा आ गया था, जो उस बेहानक और हैबतनाक जगह नहीं आना चाहिए था। मुझे मौत की दबी दबी आहटें सुनाई देने लगी। सर सर की आवाज़ें भी आई। फिर ये आवाज़ें मेरे पाँव के करीब से गुजर गईं। शायद बड़ा लंबा सांप मेरे करीब से गुजर गया था। रात खामोश थी और ये खामोशी बड़ी डरावनी थी। बड़ी हल्की सी आहट भी बड़ी ऊंची सुनाई देती और जब गुलशन आरा की चीख सुनाई दी तो ऐसे लगा जैसे 3-4 तीर इकट्ठे मेरी खोपड़ी में से गुजर गए हों। मैं दौड़कर गुलशन आरा तक पहुंचा। वो बैठी हुई थी। मैं उसके पास रुका और बैठ गया। कहाँ चले गए थे तुम? उसने हामती कामती आवाज में कहा और मुझे अपने बाजुओं में समेट लिया। मुझे अपने मरने का गम नहीं, तुम्हारा गम है। अब ना जाना, कहीं ना जाना। मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर मरना चाहती हूँ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि मैं जैसे उसकी आवाज सुन रहा था। हाँ, तो तुम तो सो गई थी। हाँ, मैं सो गई थी। उसने मेरे गिर्द बाजुओं का शिकंजा और ज्यादा तंग करते हुए कहा। कोई तुमसे मुझसे छीन रहा है। मैं उसके बच्चे को नोच रहा था। मेरे पास रहो, अब ना जाना। उसका ज़हन उसके काबू से निकल गया था। मैंने उसे तसल्ली ना दी। अब तो लम्हा लम्हा हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। लेट जाओ गुलशन, मैंने कहा और वो ज़मीन पर लेट गई और मुझे घसीट कर अपने करीब कर लिया। सूरज की तपश से मेरी आंख खुल गई। मैं ज़मीन पर पड़ा था। मुझे चर चर की बड़ी करख्त आवाज़ें सुनाई दी। मैंने लेटे लेटे उधर देखा। 4-5 गिद्ध हमसे 20-25 कदम दूर ज़मीन पर बैठे हमें ही देख रहे थे और वो शायद इस बात पर लड़ पड़े थे कि मैं उनमें से हर एक हम तक दूसरों से पहले पहुंचने की कोशिश में था। गुलशन आरा मुझसे एक हाथ दूर पीठ के बल लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं। ऐसे लग रहा था जैसे वो मर गई हो। गुलशन, मैंने उसे हिलाया। उसने मुंह आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ किया। उसका रंग जर्द हो चुका था। उम्र का एक दिन और कम हो गया है, मैंने कहा। उसने मुंह फेर लिया। वो दिन इसी तरह गुजरा कि हम ज्यादा वक्त बैठे रहे। कल तो गुलशन ने बड़ी लंबी कहानी सुना डाली थी, मगर अब वो बोल भी नहीं सकती थी। मैं कोई बात करता था तो वो मेरी तरफ देखती थी, फिर उसका सर झुक जाता। एक बार उसने मेरी तरफ देखा तो उसके आंसू बहने लगे। गिद्ध जो दरख्तों और दीवार पर बैठे थे वो अब नीचे आ गए थे। इससे ये जाहिर होता था कि यहाँ मरने के लिए लोग आते ही रहते हैं। मैं बिखरी हुई खोपड़ियों और हड्डियों को देखने लगा। गुलशन आरा को देखा। वो फिर लेट गई थी। मैं उठा और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा।
गिद्ध उड़े नहीं, कूदते हुए एक तरफ हो गए। दीवार के करीब एक खोपड़ी पड़ी थी, वहां खोपड़ियों की कमी नहीं। ये मेरे करीब थी, मैं उसी के पास चला गया और बैठ गया। नाक और आंखों की जगह सोराख थे, दांत सलामत थे। मैं उसे कुछ देर देखता रहा। निगाह उसके इर्द गिर्द जमीन पर घूमी तो मिट्टी में चमकता हुआ कुछ नजर आया। उठाया तो ये सोने का हार था। फिर मिट्टी में मुझे सोने की एक अंगूठी दिखाई दी। उठा के देखी, उसमें हीरा जड़ा हुआ था। आह इंसान, ख्याल आया, इस सोने की खातिर कत्ल करता है और कत्ल होता है। इंसान इस सोने के इवज अपना ईमान दे देता है, मगर अंजाम क्या होता है? हड्डियां भी मिट्टी में पड़ी हुई हैं और सोना और हीरे भी।